Hello and welcome to Aakash Prime Pathshala, India's largest career counseling series on Aakash Edu TV. I'm Anisha Nair Thavan. Most students appear for competitive exams along with their school board exams. And on our show today, we will discuss how to balance your school exams and your competitive exams. Our experts from Aakash Institute have helped thousands of students over decades to dream big, work smart and fulfill their career goals. So make sure you tune in to Aakash Edu TV. Do subscribe to channel 467 and 478 exclusively on Airtel DTH. On these channels, you get access to live interactive classes taken by Aakash faculty for medical and engineering entrance exams. तो अब घर बैठे बैठे आप अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं. I don't envy class 12 students at all. कंपेटिटिव एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर पाके एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन और अच्छा अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए ये ज़रूरी है. पर आपके बोर्ड एग्जाम्स भी उतने ही क्रूशल है. यू नीड अ प्लान बी इन केस योर कंपेटिटिव एग्जाम्स डोंट वर्क आउट फॉर यू. सो how do you prepare for competitive exams without letting your school scores slip? Over the next 1 hour, we'll be discussing all your questions and the right strategy to adopt. So please welcome our experts who will help answer all your queries. Please welcome Mr. Praveen Kumar, Chemistry Faculty. We have with us Payal Krishnan, trained psychologist, academic counselor and a parent, and Mr. Naveen Karke. He is the Physics Faculty. Thank you all for being here. What is the difference and how does one balance between studying for school exams and preparing for competitive exams? See, actually I would like to make a point over here because why this question actually exists. बच्चों आपके भी दिमाग में सवाल आता ही होगा कि या पेरेंट्स आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि कैसे इसको बैलेंस करना है. आई थिंक उसका एक मतलब एक मेन रीज़न उसका सर ये भी होता है बिकॉज कि जब बच्चा टेस्ट प्रेप करता है वो किसी इंस्टीट्यूट में जाता है वहाँ पर जो पेस ऑफ चैप्टर कवरेज है वो अलग हो जाता है और स्कूल में पेस कुछ अलग चलता है. कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स में स्कूल टीचर ने टॉपिक ए ले लिया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट प्रिपरेशन है वहाँ टीचर ने मान लीजिए 3rd या 5th चैप्टर ले लिया है. तो बैलेंसिंग यहाँ इस तरीके से भी देखना पड़ेगा हमें कि स्कूल में कुछ और टॉपिक्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के कुछ और टॉपिक्स हैं, दोनों का होमवर्क है, दोनों के टेस्ट हैं. तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और टीचर उसको जो जिस तरीके से गाइड कर रहा है वो थोड़ा अलग हो जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय टीचर जिस एंगल से उस टॉपिक को पिक करता है एक अलग अप्रोच लेकर के चलता है जो ज़्यादा एप्लीकेटिव है, स्पेसिफिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है. तो बच्चा थोड़ा सा वहाँ इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाता है कि सर सही अप्रोच क्या है. इसमें मेरा एक मानना है कि दिस इज़ अ फेज़ दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू. बीच में आके एक ऐसा फेज़ आ जाता है जहाँ पर स्कूल इज़ रनिंग इन वन पेस एंड कंपटीशन इज़ रनिंग ऑन अदर पेस और है 24 आवर्स. दैट्स ओनली द लिमिटेड टाइम. सो इसमें आई सी इन अ बिट डिफरेंट वे. एक तो क्या है, लाइक आई रिमेंबर अ वेरी गुड स्मॉल एपिसोड. नेपोलियन बोनापार्ट, while he was in the mid of the war, he could dictate any given statement or letters to 7 persons simultaneously on 7 different subjects. Okay. Like if I'm here, तो मैं पायल मैम को एक subject के बारे में बता रहा हूँ. So maybe I'm talking to the commander in chief. I'm writing back to my wife Josephine. तो somebody asks कि how can you manage so much of thing, जो आज की भाषा में हम multitasking कहते हैं. So he said it's quite simple. He said that there are cabinets in my mind. I open up the cabinet, the others are closed. Then I shut this, then I go there. तो मेरा एक मानना है कि this phase will certainly come. Please don't worry. Rather इसको ऐसे सोचे कि आपकी जो एक strength develop हो रही है. But एक चीज़ है, when you are doing one job, be 100% focused in that. Make a schedule. Okay, there's 2 hours off day is for my board preparation. But when you do 2 hours of board preparation, it should mean 2 hours of board preparation. अब ऐसा नहीं होना चाहिए your action and thought, दोनों में कोई एक और relation नहीं है. By action you are doing the board preparation और thought में है अच्छा chemistry के objective question भी करना है. So my point is बेशक उस समय हो सकता है ऐसे फेज बहुत आएगा कि आप
सब चीज़ को विद इन द डेडलाइन नहीं कर पाएंगे, बट उस समय डोंट फॉरगेट लुक एट द लार्जर पिक्चर। और मैं इसमें एक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग आई यूज्ड टू टेक अ सेल्फ मोटिवेशन। मैं ये सोचता था कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन नहीं हूँ जिसके ऊपर ये चीज़ ला दी गई है। Before me there were 35 or 40 generation who went through this regime, right, and they cleared it. So initially, don't forget, you need to practice patience. लेकिन जब शुरुआत में don't try to complete 100% of each. जो आपने टाइम डिवोट किया है उस समय be 100%. Next time close that cabinet, go to the other cabinet. अगर आप ऐसा करेंगे in the long run, trust me guys, you're gonna be the winner. सो बेसिकली ये जो सर ने बोला ना कैबिनेट को ओपन करना है और क्लोज करना है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि सपोज़ आप स्कूल में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चल रहा है 5th। तो ये कैबिनेट ओपन करने का मतलब है कि जो स्कूल में पढ़ा आपने घर पर आकर के उसको रिवाइज़ किया, नोट्स अपने हाथ से बनाए और साथ ही साथ ये देखा कि स्कूल एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए। अब ये कैबिनेट आप क्लोज कर सकते हैं। नाउ यू गो टू योर 5th चैप्टर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आपको पढ़ाया जा रहा है। सिमिलर चीज़ फॉलो करेंगे, जो वहाँ पढ़ाया घर आ करके उसको पढ़ा, उसके नोट्स बनाए और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए, कैबिनेट क्लोज। जब थोड़े दिनों बाद ये सिलेबस मैचअप होने लगेगा तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, जो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि स्कूल के लिए बनाए हुए नोट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प कर रहे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाए हुए जो नोट्स हैं वो स्कूल के लिए आपको हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप दोनों जगह के नोट्स नहीं बनाते, प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों जगह आप घर पर आकर के नहीं पढ़ते। आकर के पढ़ना होता है स्कूल का तो माइंड में चल रहा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यार मेरी क्लास है, वहाँ से वापस आते हैं तो स्कूल का होमवर्क है। वो उसी मिक्सअप में सिर्फ हम सोचते रह जाते हैं और बाद में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, हाउ टू बैलेंस। तो बैलेंसिंग में आई थिंक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डे 1 से बैलेंस करना है। ये जो एनलाइटमेंट है ना, ये आपको प्रिपरेशन के 8-10 महीने बाद नहीं आनी चाहिए। ओह अच्छा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ये पहले दिन से आपको पता है भाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल एज वेल एज माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहले दिन से ही आपको इस तरीके से काम करना है, राइट? प्रवीण सर, मैंने तो ऑनेस्टली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल के बाद दिए नहीं थे, पर आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड मैनी स्टूडेंट्स कि स्कूल के जब एग्ज़ाम आते हैं ना तभी पढ़ाई शुरू होती है। तो फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी करने हैं तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रेगुलरली करते रहे, मॉक टेस्ट करते रहे और जब स्कूल के एग्ज़ाम पास आने लगे तब फिर स्कूल की पढ़ाई करके अच्छा स्कोर करें? आई थिंक ये बहुत ही जेन्युइन सा प्रॉब्लम है अनीशा। इट डजंट हैव टू कोरिलेट वेदर वन हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नॉट। और इसको एक बड़ी पिक्चर में आप देखेंगे तो जो सर ने भी एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, मल्टीटास्किंग। लाइफ में बहुत टाइम ऐसा होगा जब आपका अभी जैसे आपका स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के बैलेंसिंग है, आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करेंगे, मे बी पीजी ख़त्म करेंगे, जॉब में जाएंगे, तो फिर एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा और जो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो ये बैलेंसिंग एक्ट तो देखिए आपको करना होता है। अभी शुरुआत है, आप अगर सही तरीके से अपनी लाइफ को शेपअप करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एपिसोड में भी आपको बताया है कि ये जो टेस्ट प्रिपरेशन होती है ये बेसिकली एक लाइफ शेपिंग प्रोसेस है आपका। तो अब सवाल के ऊपर मैं आता हूँ कि क्या करना सही रहता है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि आपको हर चीज़ को टाइम बेस्ड करना है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल एग्ज़ाम की, तो आपको वेट नहीं करना है कि मेरा तो अप्रैल में सेशन शुरू हुआ था, एग्ज़ाम आने वाले हैं अगस्त में, तो मैं अगस्त में जा कर के उसकी प्रिपरेशन करूँगा, वो नहीं हो पाएगा। अब ये बात मैं स्पेसिफिकली 11th क्लास वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज 10th से जब आप 11th में आते हैं तो पढ़ने का तरीका बदल जाता है, टीचर्स का पेपर चेक करने का तरीका बदल जाता है। अब वो आपको माइक्रो लेवल पे जो पॉइंट्स आपको मिल जाते थे, मार्क्स जो 10th में मिल जाते थे, वो 11th में अब नहीं मिलते हैं। 11th में आप ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर्स पूरा आंसर गलत कर देते हैं अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं कुछ आंसर में, तो राइट। इनफैक्ट मजाक बन जाता है, सपोज करिए आंसर आया 12 सेंटीमीटर, आपने सिर्फ 12 लिखा, तो टीचर बोलेंगे क्या 12 समोसे या 12 जलेबी, क्या यूनिट क्या है, तो पूरा 0 नंबर मिल गया आपको। इवेंचुअली आपको लगता है मेरे नंबर नहीं आए,
तो एक गाइडेंस हमेशा मिलती है, बेटा हार्ड वर्क करो, ज़्यादा नंबर आएंगे। आपको लगता है वो तो मैंने पहले भी की थी, तो वहाँ डिमोटिवेशन आता है। तो आपको ये समझना है कि ये जो एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ इसमें मेरी कॉपी चेक कैसे होने वाली है, टीचर किस किस बात का ध्यान रखेगी, वो चीज़ें आपको पढ़ते समय ध्यान में रखनी है, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जहाँ तक बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो है हाउ टू मैनेज दिस टाइम स्ट्रेस। क्वेश्चन तो करना आता है लेकिन 1 मिनट में सॉल्व करना है, वहाँ वो लोग फंस जाते हैं। और वो प्रैक्टिस से आता है। वो आखिरी दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई जादू की छड़ी आपके सर के ऊपर घूम जाएगी और मम्मी दही और चीनी मिला के खिला देंगी और वो आप अच्छे से कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी प्रैक्टिस चाहिए, आपने अभी तक नहीं किया है वो। इस पे आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड फर्दर, जैसे एक क्वेश्चन था कि लास्ट मोमेंट पे जाके तैयारी करते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ सिचुएशन जिसको हम कहते हैं अर्जेंसी सिचुएशन। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हेन डज अर्जेंट सिचुएशन अराइज। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, व्हेन यू डोंट डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन टाइम दैट बिकम्स अर्जेंट। तो इसका मतलब शुरू से ही आपने कंसिस्टेंटली बोर्ड के लिए आप बेशक आधा घंटा दे दो, बट मेक इट अ हैबिट। द कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू फाइंड you are rushing at the last hour, that means somewhere the planning was inefficient या planning के बावजूद भी आपने execute नहीं किया है। अब होगा क्या कि we don't execute properly और end moment पे जाके you start hopping around this strategy and other strategy। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू के दिन से ही आप एक limited time allot कीजिए, but once you allot it you need to follow it। और जैसे जो सर ने ये बात जो बताई है about the practice and it doesn't come in the last moment, it's a regular practice। yeah एक बार क्या हुआ, after Beethoven, after his wonderful concert, a lady came up and she said that Beethoven, God is in your fingers, so how can I invite God? So he said practice 16 hours a day, 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year, God would come rushing into your fingers। तो हम क्या देखते हैं ना, बस बाहर के प्रिपरेशन या आउटकम ही देखते हैं, बट इट्स समथिंग लाइक हाउ अ डक इज स्विमिंग। ऊपर से एवरीथिंग सीम्स वेरी काम एंड नॉर्मल, बट डू यू सी द स्पीड ऑफ पेडलिंग अंडर वाटर? यस, एंड दैट्स वेरी फास्ट, दैट्स वेरी वायलेंट। तो होता क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी इज वन की वर्ड। If one is very much talented but doesn't practice and other mediocre talented हैं लेकिन continuously practice, my bet always goes to the person जो consistently practice करता है। That is true। Yes। In fact, एक चीज़ I would like to add over here. See, till you are a student, the best part is ये जो test वाला जो I would say कि incidences हैं लाइफ में, ये बता के आते हैं। 1 महीना पहले डेट शीट आ जाती है। बिलीव यू मी, एक बार वर्क करने लगेंगे ना, ये टेस्ट कब आएंगे पता नहीं लगेगा। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो लाइफ शेपिंग वाली बात है ना, वो ऐसी काम कर रही है कि अगर डेली बेसिस पर वो काम करते रहेंगे तो यू शुड बी लाइक कि यार कभी भी टेस्ट आ जाए, आई एम रेडी फॉर इट। लाइफ में ऐसे ही होता है। अच्छी हैबिट्स बना लेनी चाहिए। बट पायल, all this sounds really good, but a student, after all, in my mind, is still a child. He's still a child, and there are so many balls up in the air. Sometimes you feel overwhelmed, sometimes you can't focus. As a student, how do I build on this? So Anisha, thank you for bringing up a very very pertinent aspect। एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये एक स्टूडेंट के पढ़ाई वाले जर्नी का, बिकॉज आई थिंक दिस कॉन्फिडेंस इफ इट टेक्स अ बीटिंग देन द स्टूडेंट इज़ लेफ्ट नोवेयर। सो एज पेरेंट्स, एज एडुकेटर्स, आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट एट एवरी स्टेज वी आर एबल टू टेल द स्टूडेंट दैट येस यू कैन डू इट, इट्स इन यू, So with respect to managing so many things that he has to do, and there's so many exams like both the sirs here were discussing, competitive exams, school exams, I think the key is to maintain your focus on your ultimate goal। And also, as most of us adults also do in our work life, हम अपने काम को छोटे छोटे goals में बांट लेते हैं ताकि we know that in a day this is all that I need to accomplish। So it's like essentially one step at a time, one step by step। तो कोई भी बड़ी चीज़ अगर सामने दिखती है आपको, obviously it's very natural that आप overwhelm हो जाते हो, है ना। आपको लगता है ये तो नहीं हो पाएगा, because the goal seems very far away and very big, it's very intimidating। But I think
think it's very important that the student is able to sort of break that down कि मुझे वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए. तो इन सर ने प्लानिंग की बात करी थी. तो I think consistency, planning is very very important in sort of helping you achieve little by little, and उससे आपका क्या है, motivation भी बना रहता है. You are like constantly on the roll, you know, able to reach where you want to go. इसमें I don't know कि हो सकता है some 11th studying students या 12th studying students वो भी देख रहे होंगे, तो let me explain them in their language. हाँ, मैं आपसे आने वाली थी टाइम मैनेजमेंट टिप्स के लिए, जो आप कैबिनेट्स की बात कर रहे थे. प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है? मैं तब I go to school in the morning, I come back, and अब सारा टाइम तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते ना, दूसरी चीज़ें भी करनी भी नहीं चाहिए. हाँ, तो फिर कैसे एक टाइम टेबल बनाएं? क्या टाइम मैनेजमेंट टिप्स आप देंगे बच्चों को जो देख रहे हैं? See, the first thing is that all of us, all the students should avoid being a cyber zombie, because that's the biggest distraction as of today's date. You know, it's sucking out all the creativity and energy from every given individual. मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर डार्विन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन इफ़ इट कंटिन्यूज, हो सकता है 4-5 जनरेशन के बाद ह्यूमंस वुड बॉर्न लाइक दिस, यू नो, बिकॉज दे ऑल यूज्ड टू विद द गैजेट्स एंड एवरीथिंग. तो अगर आप ये काम सबसे पहले कर सकते, इफ़ यू कैन यू नो डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम दिस द गैजेट प्रॉब्लम, तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा टाइम निकलते. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यू नो, मैंने, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि टाइम एंड मनी दैट्स वेरी इलास्टिक. जितना कम हो तब भी काफ़ी है, जितना ज़्यादा हो तब भी कम पड़ जाता है. और मेरा एक मानना है कि अगर आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, डू इट वेरी ऑफिशियली, कि टुडे इट्स 2 hours एंड इट्स माई डे, इट्स शार्पनिंग द सॉ. होता क्या है कि अगर मार्केट में हम जाते हैं, एक बड़ी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वी आर प्लान खरीद के आते हैं, यू नो, माइंडलेसली चले गए. तो हो सकता है कुछ यू नो गोलगप्पे खाए, कुछ पैटीज़ खाए, कुछ सैंडविच खाए, और शाम को आके देखते हैं कि वी आर कम्प्लीटली, मतलब पैसे ख़त्म हो गए. तो जो वेस्टेज पार्ट है, इफ़ यू कैन कर्व आउट द लीकेज, तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, दैट द फर्स्ट थिंग आई सी, दैट्स अ लीकेज. सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ यू रियली वांट टू गेट अपडेटेड विद द प्रेजेंट डे फैक्ट, ठीक है, टेक एन एक्सपोजर ऑफ half an hour a day towards the internet. Limit yourself. जैसे स्टीव जॉब्स, who literally revolutionized the whole world, limited the tech time for his kids, I don't think so, more than 1 hour. And even the same thing, what Bill Gates do, yes. अब आप सोचिए, इतना बड़ा irony है. We are just hooked in, we are just addicted to all these things, and they on the one hand, yes, काफ़ी sanctioned है. That's right. नवीन जी, ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जब हम ये टाइम मैनेजमेंट या कोई टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं, इसमें क्या फिर हम अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें कि हम ये चीज़ें एक साथ करेंगे, या फ्रेंड्स से भी पूछ लें कि अच्छा तुम उस टाइम पे ये कर रहे हो तो हम ये चीज़ करेंगे, कि दूसरा हमारा टाइम पढ़ाई में जाएगा. तो क्या कंसल्टेटिव व्यू मुझे ऐसा लगता है कि यू नो, फ्रेंड्स एडवाइस that should be listened to, but not necessarily that should be the heart of a planning. At this stage, parent would be the best friend, parent would be the best judge. और बैठ के एक certain day में like 7 to 8 hours of restful day is very essential if you really want to make it productive. और जितना अहम काम करना है, उतना ही अहम आराम करना भी है. So your sleeping hours that should not be deprived. और अगर आप स्टेप बाय स्टेप बना के देखेंगे, मान लेते 8 घंटे मुझे स्पेंड करना ही है आइदर स्कूल और कोचिंग, नाउ द रिमेनिंग 1 is 16 hours. अब जो बचे हुए 16 hours को कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूटिलाइज किया जाए, लुकिंग इनटू एस्पेक्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ फैमिली टाइम, लुकिंग इनटू एस्पेक्ट मे बी 15-20 minutes आई विल गेट अपडेटेड विद द फैक्ट. तो आई वुड से कि सबका, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी कस्टमाइज थिंग, बिकॉज सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है. पहले देखें कि कितना है आपके पास, गो विद द रिवर्स इंजीनियरिंग एंड स्टिक टू इट. ऐसा ना करें लाइक हमारे इंजीनियरिंग टाइम में एक मित्र हैं, उन्होंने टाइम टेबल तो बहुत अच्छी तरह से बनाया और नीचे उन्होंने लिख दिया हैशटैग, उस समय भी चलता था हैशटैग, दो अभी वाला मीनिंग नहीं, बट दैट यूज टू बी कि फॉलो इफ़ यू कैन. तो ये नहीं होना चाहिए. मेरा पॉइंट है कि आप बेशक बहुत कॉम्प्लेक्स रूल ना बनाएं. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेथडोलॉजी एंड टेक्निक एंड एवरीथिंग, बट वेदर यू pursue it wholeheartedly or not,
That is the big I just thing. want to come in with one point here, which is about these timetable and the structuring. I think ये हमने देखा है, बहुत बच्चों से भी बात करी है. Ultimately, what really works, like Sir also was here, was saying, if you've made it yourself, because आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. मतलब आपको पता होता है आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है. इसमें आपको ना आपके पेरेंट्स की कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है. एंड आई एम ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट द रियली यंगर चिल्ड्रन. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लाइटली ओल्डर, मान लीजिए 10th and beyond वाले बच्चे. And no need to consult parents, no need to consult friends, and you sort of know कि आपको कितना अभी चाहिए, and be honest to yourself. I think ultimately it all comes down to आप अपने से कितना honest हो. आपको अगर लगता है आपने दिन में आज अच्छी पढ़ाई कर ली है, then that is good, right? मगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिखावे के लिए, I mean at this age I think what we are talking about is that you have to be really honest. You don't have to manage. Honest to yourself. Honest to yourself. You don't have to manage impressions, because then you are fooling yourself. And ultimately you're not fooling anybody else but yourself. And you will pay for it also. I would like to add two things over here, especially for the students. First thing, the basic crux of this discussion is, भैया agree कि पढ़ना है. Very first thing. मतलब if you are preparing for a competitive exam, तो खुद को ना बता दो, यार मुझे पढ़ना पड़ेगा. सोचने से competitive exam crack नहीं होता है, और पढ़ना पड़ेगा मतलब I have to give some time to it. राइट, ये पहली एक ऐसी रियलाइजेशन है जो बच्चों को नॉर्मली होती ही नहीं है. उनको पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ सोच लेने से कि हाँ मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उनको लगता है वो बन जाएंगे. ऐसा नहीं होता. यू टू एग्री टू इट, आई हैव टू स्टडी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है, जब आप ये एग्री कर लेते हैं कि मुझे स्टडी करना है और मुझे टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, तब आती है टाइम मैनेजमेंट की बात. अब 2 बातें हैं यहाँ पर जो सर ने और मैम ने बोली हैं, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन ये कर रहा हूँ कि देखिए टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूँ. अगर आपने बोला मुझे 10 to 12 मैथ्स पढ़ना है, राइट, आपने अपने एक टाइम स्लॉट में लिख लिया. मैं इसे कहता हूँ टाइम टेबल. अब मैं आता हूँ टाइम मैनेजमेंट की तरफ. क्या होता है, अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 to 12 मैथमेटिक्स पढ़ना है, राइट, फर्स्ट डे मैं क्या करूँगा, 2 घंटे अपनी पेस के हिसाब से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एक गिवन टॉपिक के. मैं देखता हूँ कि 2 घंटे में जब मैंने आराम से उसको सॉल्व किया, मेरी कमर आराम से लुढ़की हुई है, मैं म्यूज़िक सुनते सुनते आराम से मैथ्स कर रहा हूँ, 2 घंटे में मैं 10 सवाल कर पाया. अब मैनेजमेंट शुरू होती है कि नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा कमर सीधा करके, नो म्यूज़िक, अब बड़ा सीरियसली इसको 2 घंटे में करना है. और मैं देखता हूँ कि मैंने 10 की जगह 12 क्वेश्चन किए. अब मैं बोलता हूं कि नेक्स्ट डे जब मैं 10 से 12 मैथ्स करूंगा तो 12 नहीं 13 क्वेश्चंस करूंगा. और दिमाग में वो पहले मिनट से रहेगा कि मुझे अभी 13 क्वेश्चन करने, तो राइट फास्ट. एंड यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे 13, 14, 15, 16 अब आप 20 पर पहुंच जाएंगे. ये है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट होता है सेम इनपुट बट बेटर आउटपुट. आपका बेटर आउटपुट ऐसे आएगा. थोड़े दिनों बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि दूसरे बच्चे 2 घंटे में जो काम करते हैं वो आप 1 घंटे में कर लेते हैं. ये लाइफ शेपिंग टूल है आपके लिए और ये अभी करने को मिल रहा है, राइट. तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें. और सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, रिवर्स कैलकुलेशन. मैं तो कहता हूँ आप इसको ऐसे मानें कि आपके पास अगर 2 साल का टाइम है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट कर लें कि 365 × 2 ये मेरे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं. एक डे में मुझे इतना घंटा पढ़ने को मिलता है. उसमें से फिर मेरे एग्ज़ाम्स हैं, फिर मेरी कोचिंग है, फिर मेरे स्कूल का होमवर्क है, स्कूल के टेस्ट की प्रिपरेशन है. आप फिल्टर डाउन करेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार हमारे पास तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ही बचे हैं बस, राइट. एंड देन स्लोली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ओके 1 घंटे का क्या वैल्यू है, आधे घंटे का क्या वैल्यू है. कई बार होता है ना, मम्मा कहती हैं कि बेटा आप ये काम कर लो, आप कहते हैं हाँ अभी करते हैं, हाँ अभी करते हूँ, अभी अभी में 15 मिनट निकल जाते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आपने 15 मिनट वेस्ट किए हैं. ये रिवर्स कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी उस 15 मिनट की वैल्यू समझने में. और फिर आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि अभी करते हैं, आप उसको कर लेंगे तभी के तभी, right? So I think that is a very important element for time management. And this is something that they'll carry for the rest of the life. Exactly. The learnings they'll use for the rest of the life. Praveen ji, Naveen sir was talking to us about avoiding distractions because ये जो leakage होती है इसको आप plug कर दो तो बहुत आपको फ़ायदा होगा. आपके from your perspective, what are the distractions to avoid and what is not a distraction? देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये है कि
आप कुछ भी काम करते हैं, अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं आपके सामने, राइट? तो एक चेन ऑफ थॉट है हमारे दिमाग में जो चलता जा रहा है। अभी सोचिए, अभी बात करते करते मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन आ जाता है, तो क्या होगा? मैं फ़ोन पिक करूँगा और ये जो चेन है ये टूट जाएगी, राइट? ये हुआ डिस्ट्रैक्शन। जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसी सब्जेक्ट के थॉट आपके दिमाग में रहते हैं। इनफैक्ट आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे इस बात पर एग्री करेंगे, जो बहुत फोकस के साथ कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर हमें तो सपने भी उसी सब्जेक्ट के आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो सपने में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आप मानेंगे मेरी बात। जिन्होंने नहीं किया है उनको लगेगा कि ये अजीब बातें हो रही हैं, बट बिलीव यू मी, आप करके देखिए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, राइट? जैसे अगर आप किसी गेमिंग के फ़ैन हैं और क्या होता है कि आप किसी लेवल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप सपने में उस लेवल को क्लियर कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट द सेम थिंग, राइट? तो कोई भी चीज़ जो आपके चेन ऑफ थॉट को ब्रेक करती है वो डिस्ट्रैक्शन है। ये आपको एग्री करना पड़ेगा। अब वो क्या क्या हो सकता है? वो टीवी हो सकता है, वो आपका, अगर आप स्मार्टफोन है आपके पास तो आप यूट्यूब पर कोई नया वीडियो आपका वायरल हुआ जो आप देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके चेन ऑफ थॉट से अलग कर रही है उस टाइम में जो आपने पढ़ने के लिए डेजिग्नेट किया है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं नहीं कहता कि आप मोबाइल फ़ोन छोड़ दें, लेकिन अगर आपने फिक्स किया है कि भाई मैं 4 से 6 पढ़ूंगा, तो 4 से 6 फिर मोबाइल आपको दिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपने बोला 6 से 6:15 ब्रेक है और इस ब्रेक में मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, आपकी मर्जी। आपने बोला नहीं सर मैं बड़ी देर हो गई, अब मैं रह नहीं सकता व्हाट्सएप के बिना, अब तो चैट करनी है, देखना है 2 घंटे में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, तो आप देखते हैं ना कि 15 मिनट फिर आप व्हाट्सएप के अलावा और किसी चीज़ को देखते भी नहीं हैं, बस गर्दन ऐसे ही रह जाती है। जैसे सर ने बोला कि आने वाली जनरेशन ऐसी ही होगी, तो वो फोकस आपका जो है बन जाता है ना उस एक्टिविटी के लिए, सेम पढ़ाई के लिए बनना चाहिए। अब ये आप खुद से ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ से मेरा चेन ऑफ थॉट ब्रेक होता है। अच्छा प्रवीण सर, इन दिस आई वांट टू इंटरजेक्ट, यू आर सेइंग व्हाट ब्रेक्स योर chain of thought is a distraction. But if I've planned to go see a movie with my friend on a Saturday, right, or mom is forcing me to go for dinner to a party, right, will you call these distractions or should you plan them into your timetable? See, I tell you, देखिए इसमें क्या होता है, ये आपने एक इनफैक्ट इसमें एक एलिमेंट और आपकी तरफ से एडअप हुआ है कि एज अ फैमिली मेम्बर, आप एक फैमिली के सदस्य हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, घर में कुछ फंक्शन हो सकता है, मेहमान आ सकते हैं, या हो सकता है कि उस समय दादी का कोई ऐसा सत्संग या प्रवचन जो है वो चल रहा हो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन वो चल ही रहा है और वो डिस्ट्रैक्शन है। देखिए ये सारे एलिमेंट्स लाइफ में आते हैं। मैं कहता हूँ आपको इनको बैलेंस आउट करना आना चाहिए, राइट? लाइफ में हमेशा आप गाड़ी खरीदेंगे कल और आप सोचेंगे कि सड़क पर सिर्फ आप ही गाड़ी चलाएं, कोई दूसरा हो ही ना, तो ऐसा नहीं होता है। परेशानियां छोटी मोटी आती हैं, इन सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना होता है। आपको किसी चीज़ को हाँ कहना है, अगर मान लीजिए आप मूवी देखने जाना चाहते हैं, मम्मी ने बोला नहीं आप ये करिए, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं और कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं ये सारे के सारे। हाँ, अब इसका पढ़ाई से कैसा रिलेशन है, तो मुझे इतना लगता है इंडियन पेरेंट्स को जितना मैं जानता हूँ कि आपने बोला कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे मूवी देखने नहीं जाना, मुझे लगता है पेरेंट्स बहुत खुश होने वाले हैं। नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी की बात नहीं कर रही। जब मम्मी कह रही है कि शादी पे चलो या डिनर पार्टी पे चलो, फिर बोलते मम्मी मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करने देते इसलिए मेरे मार्क्स नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप बच्चा बोल रहा है ना, ये इसमें फैक्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चलो मम्मी गई अब लगाओ। अब इसमें देखिए, अगर समवन जो अपने आप पे ही अगर सच मतलब समवन इज नॉट ट्रू टू वन सेल्फ, that's something very different. But मेरा एक I would just like to add one more thing right here. You know, the other day I was just going through an article जिसमें ये लिखा था कि after you know deep state, maybe 15-20 minutes of meditation, someone feels very energized. And it's a fact. If someone has practiced it, someone has experienced, must have certainly experienced. So what do we do it in meditation? It's a very concentrated and focused thought on one subject. तो ये चीज़ आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें. Be it your study, if you are very focused, if your energy is completely channelized in that, as if a convex lens was there, believe you me, 2 hours of study would refresh you. It would refresh you. Right. अगर देखिए, if you have, you know, if that thing is into your blood, you would love to do that. Right. Like lot many times, you know, they call the Siamese twin, where the twins are born, you know, connected, conjoined, right?
So doctors, they operate for around 17 hours, 18 hours, 19 hours. तो बाहर आके अगर किसी से पूछा जाए कि were you tired? They say, why? For what? Exactly. The reason was that, they are loving it. And the moment you love anything, the quality of the entire process is elevated to a very high degree. So the idea is that अगर आप पढ़ाई को burden मान के कर रहे हैं, मुझे लगता है that's a wastage of time. आप mindset को पहले change कीजिए. Change the mindset, process और procedure तो बात की बात है. If you are convinced that yes, I got to do it, रास्ते मिल जाएंगे. And nature is so abundant in terms of things. There's a lots and lots of surplus. Nature loves surplus. But पहले अपने आप को एक बार खुद को तो समझिए. अच्छा, do one experiment. After watching this tonight from 1 hour, just do one thing. That what do you want from life? And are you doing that required and relevant effort कि आप कर रहे हैं या नहीं? और वो effort करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की मदद चाहिए? If you start thinking in this way, मुझे लगता है कि ये जो हमारे डिस्कशन है ये रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी. बट द पॉइंट इज एक बार आप कन्विंस्ड हो जाओ. तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ वन पार्ट विच आई फाइंड इज़ मिसिंग. यू आर नॉट कन्विंस्ड एंड a convinced brain can do anything. People have done lots and lots of impossible things. They have done it. और क्या था अगर heart में देखेंगे, the brain was convinced. I want to bring in one point here because we were talking about distractions, slightly previous discussion. There's a concept called reward in psychology, right? तो अगर आपने मान लीजिए आपके टाइम टेबल को फॉलो किया एंड आप फॉलो कर पाए, सो आपका हक है, आपका राइट बनता है आप अपने आप को रिवॉर्ड करें. उससे क्या होता है कि आपकी मोटिवेशन भी जो है वो बनी रहती है, बढ़ती रहती है. सो आप रिवॉर्ड करें किसी ऐसे चीज़ से जो आपको करने में अच्छा लगे, जो आपको रिलैक्स करे, वेदर इट इज़ मेडिटेशन और टेकिंग द डॉग आउट फॉर अ वॉक और लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग और जस्ट जैसे कि सर ने कहा WhatsApp ही देखना क्यों ना हो. So that you have earned it, yes. Isn't it? And I think it's important that you build in that period into your timetable as well. Only after you have achieved what you set out to achieve. I think that's important. Give yourself a reward. Give yourself a reward. And as Sarah said that you should be convinced of what you're doing. And once you are convinced, you can do anything. In fact, when you are convinced, you can convince your mom. मुझे शादी पे नहीं जाना. एक और चीज़ क्या है ना, अभी जो है, see, I'm not being that old is saying कि modern generation ये something like that. But majority of times I see that the entire purpose of from till 14 years or 16 years सभी बच्चों का एक मानसिकता है कि बस हमारा काम पढ़ना है. वहाँ पर I would oppose. See, study is one of the thing out of your total life what you have to do. अगर आप ये सोचेंगे कि अभी का जो प्रैक्टिस है, like the timetable handling, stress handling, और जैसे आपने कहा कि okay there is a social gathering और जहाँ जाना है नहीं जाना है consciously आप no कहें. Like I don't remember the name but someone said I don't know the recipe of success but I know the recipe of failure, the inability to say no. Exactly. तो नो कहने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप हिटलर बन के नो कहें. देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू कन्विंस द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप एक चीज़ मानिए कि दिस इज़ अ फॉर्मेटिव एज ऑफ योर लाइफ. तो आपका काम सिर्फ किताब और किताबी ज्ञान नहीं है. इसके अलावा यू आर लर्निंग योर लाइफ स्किल. दे सी द लाइफ इन अ बिगर पिक्चर. तो स्टडी इज़ वन पार्ट. अच्छा, दूसरी बात, द मोमेंट यू सी दैट स्टडी इज़ वन ऑफ द पार्ट, एक बहुत बड़ा बर्डन जो है आई नीड टू स्टडी दैट इज़ रिमूव्ड. और शायद ये भी एक तरीका होगा जिससे आप बहुत जॉयफुली करेंगे. यू नीड टू लर्न लाइफ स्किल. मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जो बीच का जो टाइम है वे यू आर रिलैक्सिंग, गो टू द किचन, लर्न द जॉब. आइदर यू आर बॉय और गर्ल, दोनों केस में बाद में काम आएगा. वो रीज़न नहीं बताऊंगा मैं क्यों बैठा. बट पायल ने बात की मोटिवेशन की कि अगर आप after having completed your task, reward yourself, you'll feel motivated. Payal, there are times when students feel demotivated. जैसे आजकल बच्चे तो क्लास 10 से ही अपनी competitive exam की तैयारी भी शुरू कर देते हैं और बीच में स्कूल के कितने एग्ज़ाम होते हैं और उनमें नंबर कम आए. अब कम नंबर देखते ही पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है. लाइक यार, अब स्कूल में ये हाल है तो competitive exam में क्या होगा? I can't do it. I signed up for it but I can't do it. How do students then get out of this hole that they dig themselves into?
Yeah, I think like I had mentioned in the beginning also, motivation and self-confidence, these play a very, very important role in your ability to reach the goal that you want to, you know. And like sir had said कि problems आती हैं, मतलब challenges will come. There is no life without a challenge. But how do you meet those challenges? Whether you start self-doubt में घुस जाना the minute your results don't come good to your expectation, or do you take it on to yourself कि okay, as a challenge I will improve, I will do better, you know. And I think the comparison, while it is easier said than done, and I really understand that कि comparison के बिना competitive exams में मतलब नहीं हो पाता है. You know your peers are studying, इतना rank आ रहा है सबका, but at the end of the day your struggle is with your own self. If you are true to yourself, which I have maintained throughout, कि अगर आप अपने you're true, you know your strengths and you're practicing accordingly, you will definitely reach your goal. And जहाँ पे ये disappointment वगैरह set in होने की बात है, I think don't lose focus from the ultimate goal, because see, Rome was not built in a day. What is important is persistence and perseverance. One test you don't do well, find a way in which you can improve, and then with every little achievement अपने आप को एक pat yourself in the back. Yes, pat yourself in the back, reward yourself. I would like to give a personal example in this case, that my daughter, she is also in 10th standard. So in the midterm exam, she worked hard, but she didn't got the marks that she was expecting. As you said, demotivation came in. The preparation for the competitive exam were tossed off. हटाओ इसको, ये होगा नहीं. See, these thoughts are very easy to come into your brain, right? And the fact of the matter is कि इसका कोई no peer of yours can actually console you for this. You will never ever feel happy by somebody's word कि ठीक है, चलता है, होता है, आते हैं, सबके साथ होता है. ये कंसोल करना बड़ा मुश्किल होता है खुद को. So what is the way out? देखिए, when you are talking about your school exams, नंबर कम क्यों आए? नंबर कम इसलिए आए बिकॉज आपने उस चैप्टर का बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, लिख करके नहीं देखा, सही रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका मिसिंग था. तो नंबर कम आने का हार्ड वर्क से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ाई की मगर रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत पुअर रही, आपकी सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम है, आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ गई है, आप थॉट्स तो हैं दिमाग में लेकिन आप लिख कुछ और रहे हैं, राइट? In fact, I would like to share one incident. It's around 20 years back. Somebody wrote a mail to me saying that I have asked you so many times to ask so many times. I have no mind. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि सर ये कहना क्या चाहते हैं. तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब इसकी हिंदी में बताएंगे? बोला, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप कितनी भी बार पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा. तो देखिए, ऐसा होता है, आपने कुछ इंग्लिश लिख दी, आपको लगा मैंने बहुत पढ़ाई करी, लेकिन लिखा क्या? वो जो लिखा है उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो नंबर नहीं मिले. अब आपने बोला मैंने हार्ड वर्क किया था. अरे भाई, आपने हार्ड वर्क किया था लेकिन वो किसी को दिखा नहीं. जो लिखा है ना कॉपी में वो दिखता है. तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा और ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरी ये गलती है और इसको मुझे एलिमिनेट करना है. जब आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम मार्क्स ज़्यादा आए. ये डीमोटिवेशन स्टेट से आप मोटिवेशन की तरफ मूव करेंगे तभी होगा. और जब ऐसा होगा तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यार ओके, मतलब पढ़ने का एक तरीका है. ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मेरा मन किया मैं कर दूंगा. वो ऐसे नहीं होता बेटा. हर एक चीज़ की लैंग्वेज है ना, वो फॉलो करनी पड़ेगी आपको. तो आप ये मत सोचो कि मेरे कम नंबर आए, आप ये सोचो कम क्यों आए, क्या रीज़न है, मेरी गलती क्या है. और मैं तो कहता हूँ अपनी सारी गलतियाँ ना एक पेपर पर लिख करके, जो स्टडिंग टेबल है आपका या जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो सामने दीवार पे चिपका दो. दिन में 4 बार पढ़ो उसको, भैया मैं ये गलती करता हूँ, क्योंकि वो तभी दूर होगी. अदरवाइज वी टेंड टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बिलीव यू मी, हम हमेशा ही ऐसा करते हैं. ये हमारे डीएनए में इम्प्रिंटेड है कि हम बार बार वही गलती करेंगे. और आप देखते हैं ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है ना. आप दूसरों को भी टोकते हैं, यार तुम फिर वही गलती करते हो. ये दिस इज़ ह्यूमन. तो आपको चेंज करना है ना, तो खुद को बताना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज़ द बेसिक की. और आई थिंक दिस इज़ वर्क फॉर माई डॉटर, दैट यू नो शी लर्न दिस पर्टिकुलर पार्ट कि नहीं यार मेरे को समझ में आ गया गलती क्या है. एंड देन इन द फोर्थकमिंग एग्जाम्स शी हरसेल्फ, यू नो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और मैंने कोई भगवान से 24 के 48 घंटे नहीं करवा दिए. वो एक दिन में उतने ही घंटे थे, बच्चा पढ़ उतना ही रहा था, बस वो गलतियाँ नहीं कर रहा था. मार्क्स आने लगे,
मोटिवेशन आ गया, that's it. You know, I want to add to what sir is saying. My daughter is in the 11th and I don't understand her books now because, you know, बड़ी हो गई है. तो the only thing I ask her after her exam कि बेटा, do you know why you got it wrong? At least गलती क्यों हुई वो समझ आना is primary, is step one. Because that analysis, there are some students who don't look at कि क्यों हुई, analyze नहीं करते पेपर को कि नंबर कट गए, क्यों गलती हुई नहीं पता, क्यों मैम ने इसको गलत किया, don't bother. ऐसे बच्चे कभी भी मतलब they will never be able to improve, वो वहीं रह जाएंगे. But the students who want to know कि ये क्यों गलत हुआ, that curiosity is there, they will be able to improve. Yes, उसमें एक जैसे just to further add on sir's point या मैम's point, many times क्या होता है, एक students feel very depressed, they feel very sad. तो एक चीज़ है कि you are being very unkind to yourself and don't be so harsh on yourself. If there is a mistake, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि गलती आप में नहीं है, गलती आपकी प्रक्रिया में है. The mistake is in your process. So refine the process rather than blaming on yourself. And you know, no one was born pro. People practice. People do it consistently, on and on. और एक चीज़ है, ठीक है, मतलब all of us are, you know, endowed with special ability. किसी की mathematical ability बहुत ज़्यादा strong है, और अगर आपका कम है, that's not a point कि आप inferior complexity develop करें. 11th studying और 12th studying students, मैं आपको mathematical language में समझाता हूँ. जब physics में हम solve करते हैं, we say dx is a very small amount, ताकि इधर और इधर they are almost the same. पर जब उसको integrate करते, lower limit to upper limit, that small incremental thing when finally comes out as the result, आप देखिए कितना huge result आता है. एक जापानीज थ्योरी होगी शायद इकिगाई जैसे कि doing small improvement but consistent improvement. और ये आज के डेट में you know big corporate house they implement this theory कि अपने आप को एक मैसिव और क्वांटम चेंज के लिए डोंट एनफोर्स योरसेल्फ. यस, टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप्स लो. और दूसरी बात, बहुत जल्दी परेशान मत होइए, कभी भी होंगे. जस्ट रिमेंबर दिस एग्जांपल, क्लास 3rd में आप जिस बात से परेशान होते थे, क्या आपको वो याद है अभी? यू डोंट रिमेंबर. सो यू नो, व्हेन एवर यू फील एनी ट्रबल, या आप एक एक्सपेरिमेंट करिए. ऑल ऑफ यू आर यू नो पीपल ऑफ साइंस. जिस बात से आज आप परेशान हैं, एक बार लिख लीजिए. 1 महीने बाद दोबारा पढ़ेंगे ना, आप अपने आप पे हंसेंगे. एंड यू वुड हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम वाज सिंपल, एक इमेजिनेशन और एक हेलुसिनेशन था. सो जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस, दैट्स ओनली द बेस्ट थिंग. और एक चीज़ है, व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, एक्चुअली वो टाइम है, नाउ यू नीड टू पुट मोर एनर्जी इनटू इट. टॉक टू समवन, टॉक टू योर पेरेंट्स. एंड यू नो, एक सिंपल सी चीज़ है, कंपटीशन, यू नो, इट्स रिक्वायर्ड बट मेनी टाइम इट्स वेरी किलिंग. नसरुद्दीन साहा का एक बहुत पुराना इंटरव्यू आई वॉज लुकिंग बैक देन. इट वॉज अ रिप्ले इन दूरदर्शन ड्यूरिंग कोरोना टाइम. वी गॉट लॉट्स ऑफ फ्लैशबैक. तो उसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो शाहरुख खान, where he was a TV actor then. He was not a superstar. Now you can imagine the level of competition in Bollywood. But Naseeruddin had predicted that this guy is going to be a superstar. So someone asked, how did you come to this conclusion? So he said, I don't compete with anyone. He said, I just compete with a Shah Rukh Khan of yesterday. आप अगर बस अगला क्या कर रहा है, if you start comparing, the world is full of differences. But अगर आप ये सोचे कि कल का जो मेरा पोजीशन था, उसके कंपैरिजन में आई एम बेटर, द इंक्रीमेंटल स्टेप्स, और जो भी जिन्होंने भी बड़ा काम किया है, छोटे छोटे स्टेप्स से. सो जस्ट पिक द वर्ड लाइक डिप्रेशन, थ्रो इट अवे, अपने स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, स्टिक टू इट. लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ आपको बता दूं, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस योर स्ट्रैटेजी, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस योर पेशेंस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम नहीं आने वाला है. सो यू वुड सिंपली बी यू नो अ वेबिनार जंकी, और टेलीविज़न से इधर उधर सारे स्ट्रैटेजी इकट्ठे करेंगे, लेकिन वे इज़ द एक्शन. तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे ध्यान दीजिए, बी अ मैन ऑफ एक्शन, आप देखेंगे द रिजल्ट विल कम. आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन थिंग ओवर हेयर सर टू व्हाट यू आर सेइंग. देखिए, डिमोटिवेशन आता है जब कम मार्क्स आते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ आता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों आता है? आप लेके आते हैं क्या? नहीं सर, अपने आप आ जाता है. हाँ, अपने आप आ जाता है. ये क्या है, ऐसा क्यों है? थोड़ा सा ना मैं आपको पीछे साइकोलॉजी में लेकर के चलता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट दैट एरा जब यू नो कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी बनी नहीं थी, ह्यूमन बीइंग्स वर देयर, राइट? केवमैन, यू मीन? केवमैन, राइट? तो आप
वहाँ पर आपका एक कोई भी ऑन एनी गिवन डे व्हाट वाज योर जॉब? टू किल समवन और एंड टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम सम एनिमल, राइट? दोनों केसेस में आपकी थाई मसल्स यूज होती थी, राइट? अब आपका कोई आप पर अटैक कर रहा है तो डर के मारे आप भागेंगे। कोई जिसका आप शिकार करना चाह रहे हैं वो अगर दूर जा रहा है और आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप डर के मारे तेज भागेंगे कि अगर ये नहीं मिला तो यार रात का खाना नहीं मिलने वाला मुझे। तो दोनों केसेस में डर आपके डीएनए में बैठ गया। अब क्या होता है, जैसे डर होता है ना तो आपकी थाइज जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे स्कूल में आप कुछ मस्ती कर रहे हैं और प्रिंसिपल आ जाए, क्या होता है, वो सब भाग जाते हैं वहां से, हम दीवार कूद जाते हैं। बिल्कुल, वो सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ जाती है, फाइट और फ्लाइट, राइट। तो अभी क्या होता है कि ये आपके डीएनए में है कि जब भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसको लिख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता कि फेलियर होगा और आप कहेंगे वाह, इट विल नेवर हैपन। सो नाउ यू नो यार ये मेरे डीएनए में है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो क्या सोच रहे हो भाई, शुरू करो ना अभी से, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम राइट नाउ। तो ये अब आपको पता लग गया है कि भाई नंबर कम आएंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा, तो इंश्योर कि नंबर कम ना आए। गलतियां अपनी चेक करो, सर ने बताया, मैम ने बताया, फॉलो दोज थिंग्स। आई रियली फील कि ये डिमोटिवेशन वर्ड जो है ना ये आपकी लाइफ से निकल जाए। Truly, that is advice that students can definitely use. But if you still have questions in your mind, whether they are about preparations or whether they are about the subjects that you're studying, you can send us, you can press the WhatsApp button and send us your questions on WhatsApp, and our experts will help answer all your questions. And do remember to subscribe to channel 467 and 478, where you get access to live interactive classes taken by Akash faculty, where they are teaching you all the preparation and how to prepare for medical and engineering entrance exams. Live classes where yes, they will clear your doubts as well. So make sure you subscribe to these two channels. Now let's go ahead and take up a few questions which you've got from students as well. Let's listen into this question. Hello sir, hello ma'am. I've missed classes for a few weeks due to some personal issue and now I'm lost. So how to catch up? देखिए, the very first thing that I would say is कि the topics which you have lost during these days, जब आप क्लास नहीं कर पाए for whatever reason, stop blaming yourself, right? जो टॉपिक्स अभी छूट गए हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग आप रखें साइड पे। जो एग्जिस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं वहाँ से शुरू करें और फिर आपको थोड़ा थोड़ा ना टाइम स्टील आउट करना है ऑन वीकेंड्स या फिर उन दिनों जब आपकी क्लासेस कम हैं या आपके पास ऊपर टेस्ट का लोड कम है। अब ऐसे में मुझे लगता है फ्रेंड्स थोड़े काम आते हैं कि आप अपने फ्रेंड से नोट्स बोरो कर लें, टीचर से नोट्स बोरो कर लें, राइट? जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी लाइट में थोड़ा और स्टडी करें कि ये टॉपिक मेरा मिस हुआ था, इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास नोट्स मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए, राइट? और इसके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देख लें। थोड़ा इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। काफ़ी ऐसे आजकल यूट्यूब पर वीडियोज़ रहते हैं जो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको गाइड कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये होप लूज़ करना गलत है, क्योंकि आप ये मान करके चलें कि एक बच्चे को अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो कम से कम 3 बार तो पूरे टॉपिक रिवाइज़ करने पड़ते हैं। तो आप ये ना सोचें कि टाइम निकल गया है। आप इनफैक्ट जैसे कि नवीन सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि टाइम एंड मनी बोथ आर इलास्टिक, की कम है तो भी काम चला लेंगे आप। उस एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। डोंट थिंक दैट थिंग्स आर लॉस्ट आउट और अब आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है बेटा। और अगर आप देखेंगे कि आपके 2 या 3 हफ्ते भी निकले होंगे तो ओवरऑल मुश्किल से एक चैप्टर पर सब्जेक्ट ही आपका रहा होगा। एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो छूटा हुआ है उससे आप परेशान हैं या थॉट ऑफ डर हो गया है, डर आ गया है। मुझे जो लगता है प्रॉब्लम ये है कि ये जो थॉट है कि समथिंग हैज़ बीन मिस्ड, दिस इज मोर ट्रबलिंग। Praveen sir, in this case, do you think it's a good idea to approach the teacher after you have made the effort to catch up, if you still don't understand? See, I think जो टीचर्स होते हैं ना उनके साथ वो यहाँ पर जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कोचिंग, तो वो टीचर कम कोच ज़्यादा हैं आपके। तो कोच जो है ना इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। टीचर का काम ये है कि उसने पढ़ा दिया, डाउट ले लिया। कोच आपको ये सारी बातें बताते हैं कि भाई कैसे टाइम मेकअप करना है। आप उनके साथ अगर कांस्टेंट टच में रहते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है।
और कई बार ऐसा होता है जब टीचर को पता है कि अगर टाइम अब कम है बच्चे के पास, तो वो ही बता देते हैं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शुरू करो, ये शॉर्टकट्स हैं, इसको फॉलो कर लो और आपका काम हो जाएगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. यू शुड ऑलवेज बी इन टच विद योर कोच. Let's now take up the next question that is coming from a student. Hello, my name is Mansi Verma. I am in 12th class. I am from Chandigarh. My question is how to develop a concept introduced in school and build upon it to learn its application, which will help in competitive exams. Okay, so it's something like you're trying to see the sequence, that first you learn the concept, then you'll start applying it. In lot many cases it is valid, in lot many cases it is not valid. Like personally, मेरे learning curve में ऐसा था कि I learned a concept and you know it was a bit कि ठीक है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है. I tried for one more day. I didn't get that clarity and satisfaction. Then I started doing the numerical, and surprisingly I found when I started applying it in the numerical, that was also helping me for the concept development. So इस तरह का एक golden moment wait ना करें. It is as good as कि जिस दिन से मैं पतला हो जाऊँगा, from that day I'll start jogging. That doesn't happen. You start jogging right now. So अगर आप concept पढ़ेंगे, मान लेते some concepts are quite simple. So after the concept, start doing the numerical. जब तक आप चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, the concept will not be formed. बस सुनने से काम नहीं बनता है, बल्कि आज के डेट में मॉडर्न एजुकेटर्स काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं. You know, trying to involve every body parts of yours to learn, ताकि रिटेंटिविटी ज़्यादा हो. Like आप जस्ट एक चीज़ इमेजिन कीजिए, बस एक बार सुनिए. That's case 1. Case 2, after listening, speak out with the speaker. अगर आप साथ साथ में बोलेंगे तो रिटेंटिविटी बढ़ जाती है. उसके बाद लिखिए, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाइए. ट्राई टू यूज़ ऑल योर सेंस ऑर्गन्स इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा. यू नीड टू वर्क अ लिटिल बिट, बट वर्क का मतलब ऐसा नहीं है कि विद अ पेल फेस एंड अ लॉन्ग फेस. डू इट चेयरफुली. और जब आप इन्वॉल्व होकर करते, यू वुड फाइंड द जॉय इन इट. सबसे पहली बात तो प्लीज़ गेट कन्विंस्ड. Working something into its depth is always an enjoyable process. It is not a punishment. तो मेरा एक पॉइंट है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए and just don't wait for that good day कि हाँ अब कॉन्सेप्ट आ गया, suddenly you got that enlightenment and you'll start working on that. ऐसा नहीं होगा. अगर थोड़ा बहुत आ रहा है, now start jumping into the water. और जब तक अप्लाई नहीं करोगे, अपने आप को एंगेज नहीं करोगे, you're not going to learn. ध्यान से सुनना, ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम है. वो चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बस जस्ट बाय लिसनिंग वो कॉन्सेप्ट आ जाए, जो कि कभी नहीं होगा. साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा होती है? बिल्कुल नहीं होती है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है. तो अप्लाई कीजिए. यूज एज आई सेड काइनेस्थेटिक, डोंट गो इनटू दिस हायर टर्म्स. राइट इट, स्पीक इट आउट. बोर्ड पे लिखिए, कहीं पर लिखिए, मेक अ टैटू इन योर हैंड. किसी भी तरह से कर लो, अप्लाई इट, दे विल कम. और वो इतने नेचुरली आ जाता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज में आने लग जाती है वो. सो यू नीड नॉट वरी. प्रीवियस एक्सपर्ट ने कहा था कि रियल लाइफ एग्जांपल्स से कनेक्ट करिए और फिर कॉन्सेप्ट समझिए. Also, it's very important for learners to understand that there are different kinds of learners. Some are visual learners, some are auditory learners, some, like sir is saying, they are kinesthetically inclined. तो to be able to identify what kind of learner, मतलब आपको लेक्चर सुनने से ज़्यादा याद रहता है, या कुछ रीड करने से ज़्यादा याद रहता है, या विजुअली देखने से ज़्यादा याद रहता है. And believe me, nobody is one single kind of learner. People usually are a mix. So identify your dominant style of learning. How do you learn the best? And try to sort of capitalize on that, and I think you're good. हाँ, but एक चीज़ जो फाइनली मैं कहूँगा इसमें, you should start applying. चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल में हो, आप अगर अप्लाई करने लगोगे तो आप देखोगे your learning curve will take a exponential growth. उससे भी नहीं हुआ, एक और काम कीजिए. जैसे सर कह रहे थे कि दोस्त कब काम आते, बुलाओ और उसे पढ़ाओ. When you start teaching, concept बहुत रिफाइंड होते. क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है. Because when you speak out something, then you start going out through a very refined statement. फिर आप चीज़ें बहुत measured, calculated और weighted चीज़ कहेंगे. तो there are many different ways. और यही है, अप्लाई कीजिए, नहीं हुआ किसी दोस्त को बुलाइए, मेक हिम द विक्टिम ऑफ दैट डे. बहुत डिस्टर्ब किया उसने आपको, इस बार आप कर लीजिए. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ओवर हेयर, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स. बेटा देखिए, इतनी सारी बातें हो रही हैं, आप लोगों को लेकर के हो रही हैं, तो एक बात मुझे लगता है आपको रियलाइज़ करना चाहिए, और वो ये कि
आपको ऐसा फील होता है कि आपको पढ़ाई करनी आती है, फैक्ट थोड़ा डिफरेंट है ऐसे नहीं इन सब हमारी बातों से आपको लगा होगा, प्लीज़ रियलाइज़ इट। आपको पढ़ना आता है लेकिन इसको और बेटर कैसे इंप्रूव करना, तो जो बातें बताई जा रही हैं ना उन पे आप ध्यान दें। ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप अपने पढ़ने के तरीके को बेटर कर सकते हैं, राइट। मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आता है, वो थोड़ा कच्चा पक्का आता है, उसको पूरा पक्का करने की ही ये सारी बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। Refinement, you're learning how to refine your hone your skills here. Let's now go across and hear the next question that has come from a student. Hi, my name is Vaidehi. I study in class 11. My question is, when should I study for maximum productivity? Should I be studying during the morning hours or at night? So, to that question, there is no right answer. एक कोई fixed answer नहीं है. Everybody has their own style, or I would say preferred time when they study. I think you should be able to do maximum at a time when you feel you are the most alert. तो वो टाइम एंड प्लेस आई वुड से, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि घर छोटे होते हैं, आप दिन में सब लोग होते हैं, आप दिन में नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज जनरल नॉइज़ लेवल्स आर हायर, तो रात को आपके लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा कंड्यूसिव होगा, एंड दैट इज़ हाउ यू विल फाइनली फाइंड अ प्लेस एंड टाइम मोस्ट सूटेबल। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आप रात में एक्टिव नहीं हो पाते हैं, देन यू हैव टू फाइंड समवेयर अ कॉमन टाइम वेयर यू आर ऑल्सो मेंटली अलर्ट, बिकॉज ऐसे टाइम पे पढ़ के भी फ़ायदा नहीं है जब आपको नींद आ रही है, so I think my advice to everybody would be that find the time and place that is most suitable, where you are the most alert. In fact, you see, we get motivated by statements ना कि तुमको पता है उस सेलिब्रिटी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की, तो भाई स्ट्रीट लाइट दिन में नहीं जलती है यार, राइट। सो विच मीन्स कि उसने रात में पढ़ाई करी, यू जस्ट गेट मोटिवेटेड कि पढ़ाई करी विद व्हाटएवर रिसोर्स अवेलेबल। और शक्तिमान ने अगरबत्ती के नीचे पढ़ी थी। So find what works best for you. There is no one size that fits all. Find what works for you. Now let's listen into the next question that's coming. Hello sir, my name is Shayan Anas. I'm from Dunyajang, Assam. I'm currently in class 11. I have one question. How to remember things for long hours? Okay, so a part of this had been answered in the previous question as well. अगर आपको अपना फेवरेट लिरिक्स एक बार सुनने में ही याद रहता है और पढ़ाई याद नहीं रहता है, इसका मतलब यू आर डूइंग अ बिट ऑफ अनजस्ट टू इट। सबसे पहली बात, यू नीड टू हैव दैट कोर इंटरेस्ट लेवल, और इंटरेस्ट लेवल डेवलप कीजिए। लॉट मेनी टाइम्स इंटरेस्ट लेवल डेवलप किया जा सकता है, इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, धीरे धीरे आ जाता है। मान लेते यू से नो, मतलब आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट लेवल, बट मुझे चाहिए किसी तरह से, आई नीड दी रिटेंटिविटी। तो एक चीज़ है, जैसे कि इन द प्रीवियस सेगमेंट ऑल्सो वी हैड सेड, इंक्रीज योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल योर सेंस ऑर्गन्स। या तो लिखिए, एक बार जो आपने याद किया है उसको एक बार लिखिए, या तो अगर आपको लगता है लिखना इज़ अ वेरी बिग वर्ड तो डायग्रामेटिकली आप दिखाइए, एंड स्टार्ट मेकिंग पॉइंटर्स और स्पीक इट आउट, या try to explain this to someone else. These are the techniques. Part of this, as I had said, had already been answered in the previous question. This will help you. I would like to add one thing to our students over here. Especially जितने बच्चे कहते हैं ना कि सर हम पढ़ते तो हैं याद नहीं रहता है, ये वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे पढ़ाई में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट है ना, ये बाय प्रोडक्ट होता है, प्री रिक्विजिट नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले इंटरेस्ट आएगा फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप पढ़ लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। सो साइकिल ये होती है दैट फर्स्ट यू स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। आपने अपने थॉट डाला, इमोशन डाला, आप अपने फिजिकली उस पर काम करना शुरू किया, पहली छोटी सक्सेस मिली, इंटरेस्ट आया, और हार्ड वर्क किया, और सक्सेस मिली, और इंटरेस्ट आया, और ऐसे करते करते आपका उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट बिल्ड ऑन होता चला जाता है। तो पहले कभी इंटरेस्ट नहीं ढूंढना चाहिए, पहले हार्ड वर्क करना चाहिए। पहले करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में पहले पैसा जमा कराओगे ना तो 1 साल बाद पैसा मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप बैंक मैनेजर के पास जाके बोलो ये लो पैसे लाओ इंटरेस्ट, या पहले मुझे इंटरेस्ट दो तब मैं पैसे जमा कराऊंगा। तो भैया हार्ड एंड मनी 1 साल के लिए जमा कराओ, 1 साल बाद इंटरेस्ट आएगा, राइट।
प्रवीण सर, बैड एग्जाम्पल आई विल गिव नाउ, बट आई थिंक स्टिल वेरी वैलिड. कोई भी वेब सीरीज अपन शुरू करते हैं, पहले एपिसोड में किसी का इंटरेस्ट नहीं बनता है, बिकॉज प्लॉट खुल रहा है, अभी किसी को पकड़ में नहीं आया है, बट ग्रेजुअली जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है तब इंटरेस्ट बन जाता है. सो या आई मीन थोड़ा सा ऑफ एकेडमिक्स. और जब इंटरेस्ट बन जाता है तब वो टीडियस नहीं लगता, तब बोझ नहीं लगता. So give yourself time, get the right technique and you'll get there. Let's listen in to the next question that is coming, this time from a parent. हेलो, मैं सुजीत और मेरी बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है और वो ट्यूशन भी जाती है. मैं साइंस से नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं अपनी बच्ची को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? एंड फिर जी चलो ट्यूशन में डाल दिया, अब बच्चे सीख जाएंगे, तो क्या हमारा काम खत्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म एज पेरेंट्स? अब मतलब शुड वी बी हैंड्स ऑफ? So I think it's how you perceive your role as a parent to be. Meaning अगर आपने अपने हाथ से बच्चे को छुड़ाने के लिए ट्यूशन भेज दिया तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज द बच्चा ऑल्सो इज एबल टू सेंस कि आपने किस इंटेंशन से, इफ द बच्चा सेंसेस द अर्नेस्टनेस कि आप जेन्युइनली चाहते हो कि ही मेक्स, बिकॉज आप एक बियॉन्ड अ सर्टन एज वेयर अ चाइल्ड इज यू नो इन द टीनेजर्स या हायर क्लासेस, एज अ पेरेंट you are definitely limited by how much you can guide in the specific subjects. That's why you have sent him to the tuition, but you have not sent him to the tuition कि चलो मेरा छूट गया, मतलब I don't need to do anything. Then there is a problem. But if your ultimate goal is that you want him to get the best and therefore you've sent him, I think you've done your bit. But the bigger role that you as a parent can play is आप उसका हौसला and encouragement, motivation, you should keep building that. As a parent, if you tell him that, look, I believe in you, मुझे आप पे विश्वास है, I know you can do it. These self-affirming statements play a very important role in a child's life. हम शायद सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया 16, 17, 18 year old, उसको ये सब ज़रूरत नहीं है, but that is wrong. We are the primary person the child has in his environment and we play a very important role as a parent. तो repeatedly अगर बच्चा आपसे सुनेगा affirmations कि yes you can do it, yes you are very sharp, but आप apply नहीं करते, you know, if you are able to give him those positive affirmations, the child will definitely blossom. I think that is the best that you can do. Also, you need to leave as parents the role of educating and guiding your child in specific subjects, curriculum related things to the experts. Now, the experts here are the educators, are the teachers, are the mentors that your child will be in a place like Aakash. There are these educators who've been mentoring students for years, and that is their job. They know, they will identify your child's specific strengths and weaknesses in different subjects. So that is their job. That is why they are there shaping lives, you know, and you as a parent can give that gentle support that I'm always there for you. I'm always supporting you. Very rightly said, Payal. And as a parent, if you have some questions, if you feel that could you improve upon how you handle your child, do send your questions to us and our experts will be happy to answer all your questions on WhatsApp. Naveen sir, one thing I wanted to say and ask you, Payal ma'am said that, you know, the educators are doing a great job. Your coaches are really coaching you for life. What is there any role to play between how the coach communicates with the parent as well? Or is the communication of the coach only with the student and is that enough? Should the parent be involved, you know, or ask the teachers also how the child is doing, even if they cannot materially, you know, impact the curriculum because they don't understand it? How important is this coach and parent communication? Extremely important. The importance of this is very, very large. Rather, हम ऐसे कह सकते हैं कि the educator, the parent and students, they lie in the three vertices of a triangle. होता क्या है, like in physics we call frame of reference, अगले के नज़रिए से भी देखना. So lot many times क्या होता है, the students, you know, given their age, given their expressiveness or lot many things, वो the event that happens or the type of examination they are facing, the type of environment they are, you know, preparing in, they would not be able to say it to the parent. But what happens is that if there is a communication between the coach and the educator, so if there is a communication between the coach and the parent, so you know the parent knows कि कल जो है मेरा बच्चा जब prepare करने जाता है, what is the type of, you know, play field, how big it is, what is the level of inclination. So you know that gives or that information in the hindsight will really, really be helpful, and parents, rather as a strict monitor, they would rather come as a good friend who would have understood the environment that the kid would be facing. So communication
among all these three elements, that is very, very vital. In fact, I would like to add on to this कि देखिए पिछले 20-21 सालों में अगर मैंने 1000 बच्चों को उनके उस ड्रीम कॉलेजेस में जाने के लिए हेल्प किया है, तो ये मेरी स्टेटमेंट थोड़ी गलत है. मेरी सही स्टेटमेंट ये है कि मैंने 1000 टीम्स को सपोर्ट किया है. टीम ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर. ये टीम वर्क है, आपको साथ रहना ही है. आप अगर सोचेंगे कि एज अ पेरेंट ये करके मेरा काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस जॉब यार. ये 24 आवर का जॉब है, ये टीम वर्क है. सब मिलकर के करेंगे तभी बात बनेगी. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ प्रोडिजीज होती हैं जो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो लाखों में एक होते हैं. उन चीज़ों को लेके one should not say like the father said to the son, at your age, Thomas Alva Edison was inventing or had invented so many different things. The son replied, at your age, George Washington was the president. So I think that would be the way. So बात ये है कि just sending to the coaching, just sending to the tuition, doing this outsource does not suffice the entire process. ये एक बहुत बड़ा मिशन है. और आप मतलब पेरेंट को मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट गेट इन्वॉल्व ज़रा, क्योंकि आपको पता है यू आर नॉट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तभी तो आपने भेजा है रेस्पेक्टिव प्लेस में. लिटिल बिट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट क्रिएट्स मैजिक. And of course, a lot of encouragement as well, and belief in your children. Hope you've enjoyed today's show. We've had our experts give you gems of advice on time management, on motivating yourself, and on acing life when you face it, whether be it board exams or your competitive exams. Do remember to subscribe to channel 467 and 478 on Airtel DTH on Aakash Edu TV channels. You get access to live interactive classes taken by Aakash faculty, where they answer all your questions when it comes to medical and engineering entrance exam. Thank you for watching and stay tuned.